Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, the last lesson of final assessed question, final assessed lesson, our environment from class 10th is over. Our environment was the last lesson of our session 2020-21. While apart from our environment, one of important lesson, that is natural resource, is still in our syllabus, but that lesson will not asked in final examination. That lesson was actually available in previous session as by means of the final assessment, by means of the final board question, but from the session 2020-21, the all about matter of natural resource actually remain for the internal assessment, which will not assist for the final examination. So I will thoroughly explain the our environment, the long short true false question, and also fill in the blanks type, MCQs type, assertion region, so many types of question. Here I have selected for you the MCQs, assertion and regions type question, fill in the blanks type question, and true false type question. Apart from our environment and the selection of different kinds of MCQs, assertions and regions, fill in the blanks, true false type question, I will also bring you the important long and short type question. But after end of these MCQs, assertions and regions, fill in the blanks, true false type question. Later, I will thoroughly explain the different board question, that is from MCQs, and similarly long and short type question from life process, reproduction chapter, heredity and evolution, and then the our environment chapter. These are actually four different kinds of chapter that may ask probably in the examination. So you should also revise thoroughly along with the video lecture and note down the important concept. So be with the video lecture and left the matter of natural resource till the overall life process, our environment, as well as the reproduction and heredity portion get revised thoroughly, because the natural resource actually assessed as internal assessment. इंटरनल असेसमेंट मीन्स होम एग्जामिनेशन में होने वाले सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें वो असिस्ट किए जा सकते हैं. फाइनल एग्जामिनेशन में नेचुरल रिसोर्स असिस्ट नहीं किया जाएगा, यानी फाइनल एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जाएगा. फाइनल एग्जामिनेशन में कहाँ तक क्वेश्चन आएंगे आपके, आवर एनवायरनमेंट लेसन तक ही आएंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा उसमें पैनिक नहीं होना है. आवर एनवायरनमेंट को पूरा मैं कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है. इसमें क्या बच जा रहा है, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बच जाएंगे उसको हम फाइनल एग्जामिनेशन में असिस्ट करा देंगे, ठीक है. और पूरा थॉरली इसको रिवाइज करने के बाद उसको हम असिस्ट करा देंगे, ठीक है. नाउ बैक टू द क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यूज एंड लेटर द असेसर रीजन टाइप क्वेश्चन ओवर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, और इसमें कई पार्ट्स लग सकते हैं. तो पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो पार्ट 2 भी लाएंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे, ठीक है. नाउ बैक टू द क्वेश्चन. नाउ MCQs type. First, I have selected the MCQs type question. Here, the question number 1. First of all, let me begin the revision from MCQs type. Important MCQ, इसलिए इसमें आप बोर्ड के साथ बोर्ड का ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है. इसमें से आप बाहर के क्वेश्चन को मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया, सब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है. आई होप ये सब कर लेंगे आप, और इसको कॉपी में लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिखेंगे. जैसे आप लिखेंगे, जैसे ये MCQs है, इसके बाद जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसके सामने लिख देंगे, और नीचे एक्सप्लेन करके 1 लाइन या 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन होगा, रीजन के साथ लिखेंगे, ठीक है. चलो अब एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट जो है पार्टिकुलर MCQs में सबसे ज़्यादा आता है वो क्लियर हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, कह रहा है इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल होता है. पहले तो आप जान लीजिए बायोडिग्रेडेबल होते क्या हैं. ऑल दो सबस्टेंसेज दैट इजीली डिकम्पोज्ड एंड डिग्रेडेड बाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. The living organisms means the microorganisms, that is known as the decomposers. जो decomposers डिग्रेड करते हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. अब आगे आते हैं प्लास्टिक मग्स, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसको ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं कर सकता, इवन दो इस पर टेम्परेचर प्रेशर किसी का भी असर नहीं पड़ता है.
अब आते हैं लेदर बेल्ट, सिल्वर फॉइल, आयरन नेल। देखो लेदर बेल्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैंने बोला ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है वो सब जो है इम्पोर्टेंट सबस्टेंस है लिविंग बॉडी का, और जो लिविंग बॉडी के कंपोनेंट्स है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसानी से डिकम्पोज कर लेगा। जैसे वुड हुआ, ठीक है, लकड़ी, लीव्स हुआ, ठीक है, फ्लैश हुआ, मांस, लेदर, चमड़ा, ये सब जो है आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। बट प्लास्टिक मग, ठीक है, सिल्वर फॉइल, आयरन नेल, ये सब आसानी से डिकम्पोज होने वाले नहीं हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। और एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे इसको, एक्सप्लेन में इसको लिखेंगे एज वी नो दैट लेदर बेल्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनिमल्स, so it can easily decomposed by the microorganisms like bacteria and fungi, so it is it is biodegradable, while rest of plastic mug, silver foil and iron nails cannot decompose, so they are non biodegradable। क्वेश्चन सिर्फ बायोडिग्रेडेबल छाट रहा है, तो बायोडिग्रेडेबल आसानी से हम लिख लेंगे लेदर पर, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आपको अगला छाटना है नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो वुल, मैंने क्या कहा, वुल ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैंने ट्रिक भी आपको दिया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है कौन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कौन आसानी से डिकम्पोज हो सकता है कौन डिकम्पोज नहीं हो सकता। तो जो लिविंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सब जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलो इसमें से लिविंग बॉडी से कौन कौन निकाले जाते हैं, वुल, एनिमल बोन्स, टी लीव्स, ठीक है, ये तीनों लिविंग प्रोडक्ट है। टी लीव्स टी के प्लांट से, एनिमल बोन एनिमल से, और वुल एनिमल से निकाले जाते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल और ये डिकम्पोजेबल है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा बच गया क्या, बच गया है आपका नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये पॉलीमर है जो आर्टिफिशियली सिंथेसिस इसका किया जाता है और ये लैब में बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़े कॉमर्शियल इसका प्रोडक्शन किया जाता है और ये एक्चुअल में नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आसानी से इसको कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सप्लेनेशन में आप पुरानी बातें नहीं लिखेंगे, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। नाइलॉन्स आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड द फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स है, इसको आप छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन। कह रहा है इसमें से सबसे तेजी से किसका डिग्रेडेशन होगा। देखो जो सबसे स्मूथ होगा वही जो है सबसे तेजी से डिग्रेड होगा। अब आते हैं मैंगो सीड। देखो मैंगो सीड में क्या अवेलेबल है, उसका सीड कोट काफ़ी हार्ड होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, पॉलीमर का बना होता है और आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। वुल ये भी इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ये डिकम्पोज्ड वुड जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है कॉर्क की वजह से, कॉर्टेक्स की वजह से। मैंगो पील और मैंगो पल्प में अगर देखा जाए तो मैंगो पील जो है, जो मैंगो का छिलका होता है वो काफ़ी रफ होता है, ठीक है, और मैंगो पल्प जो है काफ़ी स्मूथ होता है। यानी मैंगो पल्प और मैंगो पील का मैं मतलब समझा दूँ, जो आम होता है आम, ठीक है, आम के ऊपर का जो छिलका है उसको मैंगो पील बोलते हैं, और उसके अंदर का जो फ्लैश होता है, गूदा होता है, वो इसको बोलते हैं मैंगो पल्प, ठीक है। आप जो है फ्रूटी वगैरह पीते होंगे, माजा पीते होंगे, ठीक है, तो उसमें देखे होंगे द मैंगो पल्प उसमें लिखता है, ठीक है, लिख के आता है। तो मैंगो पल्प क्या होता है एक्चुअल में, मैंगो पल्प एक्चुअल में आसानी से डिकम्पोज हुआ, तेज़ी से डिकम्पोज हुआ। मैंने बताया था कि स्मूथर सबस्टेंस, ट्रिक है आप नोट कर लीजिए, स्मूथर जो सबस्टेंस होते हैं, जो स्मूथ होते हैं वो तेज़ी से डिकम्पोज हो सकते हैं, तेज़ी से डिग्रेडेशन उनका हो सकता है, और जो स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं हो सकता है, तेज़ी से नहीं होता है। तो आई होप ये आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मैंगो पल्प। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन, तो क्या हो जाएगा मैंगो पल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पिक दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। फोटो के बाद, फोटो आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि अब क्वेश्चन शुरू होगा तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन आपके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है, पिक के बाद फोटो के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज दिए हुए, ठीक है। और एमसीक्यूज जो दिया हुआ है उसमें से आपको छांटना है, ठीक है। अब आप आगे जो पिक दिया हुआ फोटो दिया उससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, एन इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर ई का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एन इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर गिवन अबव, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फिगर इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इकोसिस्टम विल बी सेल्फ सस्टेनिंग इफ, सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स अपने से चल रहा है, इसमें किसी मैन मेड अप्रोच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाई बी आर एलिमिनेटेड, कह रहा है कि जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिख रहा है बी वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये जो दिख रहा है बी ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये ग्रीन प्लांट्स वगैरह की बात कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, ठीक है। एलिमिनेट कर दो तो ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो देखो ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूसर होते हैं, सबको पता है, और प्रोड्यूसर से आगे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको फूड मिलता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को, जैसे इसमें फ्रॉग दिया तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन हो जाएगा, बटरफ्लाई, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको आप ए, इसको भी ए दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बी का बी प्रोड्यूसर है, तो इसको कौन फीड करेगा, इसका प्रोडक्ट फीड करेगी बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई को कौन फीड करेगा, ये फ्रॉग फीड करेगा। तो ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी सस्टेन कर रहा है, तो इसमें प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं रहेगा, यानी बी ना निकाला जाए, बी अगर निकाल दिया जाए तो ये सिस्टम सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये सिस्टम सस्टेन नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, मटेरियल साइकिल बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स लेवल ए एंड द ऑर्गेनिजम्स लेवल बी, कह रहा है कि ए और बी के बीच में मटेरियल साइकिल, ए और बी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। मटेरियल साइकिल मतलब पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका प्रोडक्ट ये ले रहा है या इसका प्रोडक्ट ये ले रहा है, उसमें अगर हम उसको अगर हम इन्वॉल्व रखें तो ये सस्टेन करें। देखो इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्रॉग जो है हर्बीवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग का इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन अपने डाउट के लिए। सी क्या पूछ रहा है, द ऑर्गेनिजम्स लेबल्ड ए आउट नंबर द ऑर्गेनिजम्स लेबल्ड बी, ये ऑर्गेनिजम्स ए और बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए दोनों इसके लिए ज़रूरी हैं। ऑर्गेनिजम्स लेबल ए आर इक्वल, ऑर्गेनिजम्स ए जो है वो इक्वल नंबर में रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या है, फूड गेन कर रहे हैं। कौन, ए जो है फ्रॉग जो है बटरफ्लाई से अपना फूड गेन कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी किससे रिलेटेड है, ये बी से, और ए का रिलेशन है इससे, यानी कि ए और बी का जो रिलेशन है फ्रॉग का, ये इन दोनों से, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट जो है एक दूसरे को इंटरफेयर, इसके बीच में मटेरियल साइकिल नहीं हो रहा है। मटेरियल साइकिल मतलब एक चीज़ ये इससे ले तो दूसरा इससे भी दे, तो यहाँ तो ये फूड ले सकता है, मे बी हम इस ए को अगर सपोज करें तो ये फूड तो इससे ले सकता है, लेकिन बटरफ्लाई से कोई प्रोडक्ट ये प्लांट्स को नहीं मिल रहा है, तो मटेरियल साइकिल नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 5 पूछ रहा है इफ़ एन ऑर्गेनिजम्स हर्बीवर्स रिप्रेजेंट, कह रहा है कि एक ऑर्गेनिजम्स हर्बीवर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम हर्बीवर्स रिप्रेजेंट, कह रहा है कि किसी इकोसिस्टम में हर्बीवर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है हर्बीवर्स हमेशा प्रोड्यूसर नहीं, सॉरी, हमेशा वो प्राइमरी कंज्यूमर रिप्रेजेंट करते हैं। हर्बीवर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। देखो जब आप प्रोड्यूसर बनाते हैं, प्रोड्यूसर के बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद कौन आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो टोटली प्लांट्स पे डिपेंड हो, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हर्बीवर्स इसी कैटेगरी में फॉल्स होते हैं। और प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, कॉर्नीवर्स आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कॉर्नीवर्स, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवर्स, और प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने अकॉर्डिंग आपको लिख लेना है, अपने अकॉर्डिंग समझ लेना है।
ठीक है। ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ग्रीन प्लांट्स, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवर्स और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कॉर्निवर्स आते हैं। इसको आप वीडियो लेक्चर से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो में इसको मैंने क्लियर आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है। अगर इसका लिंक वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर्बीवर्स, कॉर्निवर्स और ऑमनीवर्स का प्लेस कहाँ कहाँ होगा, और साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर कैसे आप एक दूसरे से फूड शेयर करेंगे और किस ऑर्डर में कहाँ कौन प्लेस होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम हर्बीवर्स रिप्रेजेंट बाई द प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवर्स कंज्यूमर होते हैं। जहाँ से एनिमल, ट्रिक मैं दे रहा हूँ, जहाँ से एनिमल शुरू होता है सब कंज्यूमर होते हैं, जहाँ से प्लांट खत्म होते हैं वो सब प्रोड्यूसर होते हैं। तो एनिमल में सबसे पहले एनिमल हर्बीवर्स आता है, उसके बाद कॉर्निवर्स। तो हर्बीवर्स डायरेक्ट जो प्लांट पे डिपेंड रहेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, ट्रॉपिक लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या साल्ट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रॉपिक लेवल हमेशा एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को लिखिए और इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। इन ईच ट्रॉपिक लेवल इफ एन ऑर्गेनिजम्स प्लेस एज पर देयर एनर्जी फ्लो। अब ऐसा नहीं कि ट्रॉपिक लेवल 3 लिखेंगे तो ट्रॉपिक लेवल 2 लिखेंगे तो ट्रॉपिक लेवल 1 लिखेंगे, नहीं। ट्रॉपिक लेवल जो 2 है एक्चुअल में ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 1 ट्रॉपिक लेवल 2 से कोई एनर्जी गेन नहीं करता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हम रैंडम अपने मन से लिख देंगे चलो ट्रॉपिक लेवल 1 है तो ट्रॉपिक लेवल 3 है तो ट्रॉपिक लेवल 2, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस में ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, इस सीक्वेंस में इसी वजह से फ्लो किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। T1 टू T3 फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी फ्लो है हमेशा प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 3, 4, 5 ऐसे इस ऑर्डर में जाता है। तो ट्रॉपिक लेवल हमेशा एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके ही लिखेंगे MCQs, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है अ फूड चेन कंपेराइजिंग बर्ड्स, ग्रीन प्लांट्स, फिश एंड मैन, the concentration of harmful chemical entering the food chain will be maximum in। कह रहा है कि एक फूड चेन है जिसमें बर्ड्स है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स है, इसके बाद बर्ड्स है, ठीक है, फिश है, मैन है, ठीक है। फूड चेन में एक लंबा सा मैंने डिपेंड कर दिया, तो इसको सबसे पहले सही से बनाना है। तो सबसे पहले प्लांट्स है, प्लांट्स में जो ग्रीन प्लांट्स है छोटे छोटे उसको कौन खा रहा है, सपोज दैट फिशेस को लिख देना क्योंकि ऐसा तो है ना इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। फिशेस, उसके बाद बर्ड्स, ठीक है, उसके बाद मैन लिख दीजिए। तो कह रहा है कि कोई टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस जो एंटर कर रहा है तो सबसे ज़्यादा किसको, मैक्सिमम किसको मिलेगा? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बायोमैग्निफिकेशन का। बायोमैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि the accumulation and enhancing the toxic substances from producer to top level consumers in an ecosystem called as biomagnification, ठीक है। मैग्निफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज, मैग्निफिकेशन मीन्स हमेशा क्या होता है, बढ़ना होता है, ठीक है। क्या चीज़ बढ़ना? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का बढ़ना, वो क्या हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके हिसाब से आप अपने इसको लिख लेंगे। तो टॉक्सिक सब्सटेंस जब बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल कंज्यूमर में जाएगा, यानी कि मैन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है सही आंसर है वो क्या है, बी है, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, उससे आगे फिश है, उसके बाद बर्ड्स है, फिर ह्यूमन बीइंग है। सबसे टॉप मोस्ट लेवल कंज्यूमर इसमें ह्यूमन बीइंग दिख रहा है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहता तो बर्ड्स, अगर बर्ड नहीं रहता फिश, ठीक है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट 8। फर्स्ट लिंक्स इन एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट्स बिकॉज, कह रहा है कि फर्स्ट लिंक्स जो है हमेशा फूड चेन का ग्रीन प्लांट्स होता है, क्यों? दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपके टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछ रहा है कि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड होते हैं, इस वजह से होता है क्या? ऐसा नहीं है। दे आर फिक्स एट वन प्लेस इन द सॉइल, वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, इस वजह से वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से वो फूड चेन का पहला पार्ट है। ये भी ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
दे अलोन हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसिस फूड यूजिंग सनलाइट। ये ऑप्शन सही है। फोटोसिंथेसिस करके वो सनलाइट से फूड को स्टोर करते हैं। सनलाइट से अगर फूड को स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अगले जनरेशन के लिए, यानी कि अगले जो ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जितने भी एनिमल्स हैं आफ्टर प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स ट्रॉपिक लेवल में फील्ड हो रहे हैं, वो फूड गेन करने की एबिलिटी तो रखते हैं, लेकिन फूड को सिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में वही ऑर्गेनिजम्स प्लेस होगा जो फूड सिंथेसिस करने की एबिलिटी रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका सी हो जाएगा। देयर आर मोर हर्बीवर्स देन कार्निवर्स, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, सी। इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। चलो आते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इज फॉल्स। इसमें से जो गलत है उसी को छांटना है। देखो एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे गड़बड़ आ गया है, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है उसी का एक पार्ट है। बाकी ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमेशा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम बता दें क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देखो इसमें से फॉल्स है वही छांटना है। फूड वेब इंक्लूड्स 2 और मोर फूड चेन, ये तो ऑप्शन ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई, एक फूड वेब में मैंने बताया था कि ढेर सारे फूड चेन होते हैं। जब बहुत सारे फूड चेन इंटरलिंक होंगे, फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में ही अपलोड किया था। जिस किसी स्टूडेंट्स को फूड वेब का वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में फूड वेब अगर नहीं पढ़ा होगा तो फूड वेब का वीडियो मुझसे ले लेगा, ठीक है। मैं उसको लिंक पेस्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो आते हैं, फूड वेब इंक्लूड्स 2 और मोर फूड चेन। कह रहा है कि फूड वेब जो है एक, 2 या 2 से ज़्यादा फूड चेन का एक लिंकिंग होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट को छांटना है। बी क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट प्रोड्यूस आर कंज्यूमर। कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर नहीं होते सब के सब कंज्यूमर होते हैं। सही बात है, केवल प्रोड्यूसर को छोड़ करके बाकी जितने भी होंगे, चाहे ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होंगे, चाहे ट्रॉपिक लेवल सेकंड के ऑर्गेनिज्म, चाहे ट्रॉपिक लेवल थर्ड के ऑर्गेनिजम्स, एक्चुअल में यहाँ से ट्रॉपिक लेवल सेकंड शुरू होगा, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट तो हमेशा प्रोड्यूसर फील करता है, प्रोड्यूसर को छोड़ करके बाकी सबको कंज्यूमर बोलेंगे। वीडियो आपको मिल गया होगा इसका, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट्स ट्रू है। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैन फीड एट सेवरल ट्रॉपिक लेवल। एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स ढेर सारे ट्रॉपिक लेवल में भी फीड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स है, प्लांट्स को इंसेक्ट खा रहा है और इंसेक्ट को स्पैरो खा रहा है। स्पैरो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी खा सकता है। अगर यहाँ पे ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग भी प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खा सकता है। तो कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल ऑर्गेनिजम्स, वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी फीड किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डेटिटिवर्स फीड एट ऑल ट्रॉपिक लेवल एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल। कह रहा है डेटिटिवर्स जो है सभी ट्रॉपिक लेवल को के द्वारा खाया जा सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसको नहीं खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है डेटिटिवर्स के केस में, प्रोड्यूसर के केस में मैं ये बता दूं कि प्रोड्यूसर डेटिटिवर्स पे डिपेंड रह सकता है, बट जितने भी दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड नहीं रहते हैं। रीज़न क्या है, जैसे मैं आपको करूं कि डेटिटिवर्स पहले समझा दे रहा हूँ। डेटिटिवर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी जैसे ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर्स की तरह से बिहेव करे, जैसे अर्थवर्म। कह रहा है अर्थवर्म जो है सभी ट्रॉपिक लेवल में कंज्यूम किया जा सकता है, बट प्रोड्यूसर उसको कंज्यूम नहीं करता है। तो यहाँ पे डेटिटिवर्स हुआ, डेटिटिवर्स में अर्थवर्म हुआ, सेंट्रीपीड्स, मिलीपीड्स, ये सब क्या होते हैं, मिलीपीड्स, ये भी डेटिटिवर्स होता है। तो मिलीपीड्स को सब थोड़ा खाते हैं, ठीक है। हर्बीवर्स जो है ये नहीं खाते हैं डेटिटिवर्स को, यानी हर्बीवर्स कोई भी हो अर्थवर्म को नहीं खाएगा। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फॉल्स। बाकी स्टेटमेंट ट्रू है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा डेटिटिवर्स का मतलब क्या होता है, ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल एंड कैन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेटिशन। डेटिशन क्या होता है, डेटिटिव वर्स जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। बाकी उसका काम, अगला काम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है। वो सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स को वेरी सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ये डेटिटिवर्स की खास बात होती है, जिसमें आपका कौन आता है, अर्थवर्म आता है।
इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अभी लास्ट है इस पार्ट का, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 11 ऑनवर्ड जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, कह रहा है इसमें से फूड चेन का लॉजिकल सीक्वेंस क्या है। ए क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, कह रहा है इसमें से लॉजिकल फूड चेन का एग्जाम्पल कौन है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सब जो है गड़बड़ है। पहला स्टेटमेंट क्या, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, बाकी प्रोड्यूसर के बाद डिकम्पोजर नहीं आते हैं, कंज्यूमर ही आते हैं। कंज्यूमर तो सबसे पहले आ ही नहीं सकता, डिकम्पोजर प्रोड्यूसर तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का आप जो है वीडियो थॉरली देखेंगे, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इसमें आपको प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएंगे, और लाइव क्लास जब आपका थर्सडे टू सैटरडे चलेगा तो उसमें मेरे से ही इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द पार्ट 2 दैट इज़ फ्रॉम 11 to 20 thoroughly and deep. Keep in mind, I will explain the question 11 to 20 thoroughly and very explanatory. Not only I aware you the important MCQ, I also aware you whatever the exact explanation. Thank you.